अस्सलाम वालेकुम class। आज का हमारा टॉपिक है cranial wall, which is cranial cavity. Cranial cavity contains the brain and its surrounding meninges, portions of the cranial nerves, arteries, veins, and different venous sinuses. Cranial wall has two aspects: superior aspect and the inferior aspect. Superior aspect is the external surface, which we can view easily. This is the superior aspect, external surface of the cranial wall. We can do the bones first: frontal bone, two parietal bones, and the occipital bone. Then sutures. The frontal suture between the frontal bone and the two parietal bones is the coronal suture. Then between two parietal bone is the sagittal suture, and between the occipital and the two parietal bones is the Lambert suture. Two landmarks which can Bregma and lambda. Bregma is the point where anterior fontanelle is located, and then you already know the lambda. Parietal eminence on both sides, then the parietal foramina in the posterior region. Then you can see the temporal line, superior temporal line and the inferior temporal line. This is all you already know. Now we can do the cranial wall, the internal surface of the cranial wall, the inferior aspect. You can start from the midline, and this is midline, and then deviate to the lateral sides and see what are the structures we come across. First is the frontal crest. Frontal crest present anteriorly. It is a point where falx cerebri, which are folds of dura mater, attach. Ma'am, can you repeat it? Yes. Frontal crest is a point where falx cerebri actually connections from the brain, which are folds of dura mater. A matter which surrounds the brain, it's called dura mater. These are actually folds attached to the cranial wall. Falx cerebri is a structure which divides the brain into two cerebral hemispheres. Here, frontal crest present anteriorly, it is the point where falx cerebri, which are folds of dura mater, attach, and which divide the cerebral hemisphere into two. As we run down, you can see the distance between these two lines increases. Anteriorly, it is
begins at a crest, then the two lips are formed. As we run down, the two lips are formed, and the distance between these two lips increases gradually. In the middle portion, these are not easily prominent, but in posterior region, these two lips are very prominent. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है और हमें समझ नहीं आ रही। कहाँ से समझ नहीं है? मैम मुझे भी आपने यहाँ से स्टार्ट से पढ़ाया है, मैं समझ नहीं आ रही। शुरू से आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं आ रही। मैम एक वर्ड सुनाई दे रहा है और एक नहीं दे रहा। सॉरी मैम एक वर्ड हमें सुनाई देता है, दूसरा गायब हो जाता है। अच्छा, ये फ्रंटल क्रेस्ट है। अब आपको मैं स्लो कर लेते हैं, समझ आएगा। फ्रंटल क्रेस्ट प्रेजेंट एंटीरियरली, इंटीरियर सरफेस। जब हम क्रेनियल वॉल इंटरनल सरफेस करेंगे, सबसे पहले हम इंटीरियर साइड से देखें तो यहाँ पे एक क्रेस्ट प्रेजेंट है। दिस इज द फ्रंटल क्रेस्ट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फॉक्स सेरिब्राई आके अटैच होते हैं। FALXCEREBLLI, फॉक्स सेरिब्राई। These are folds of dura mater. And which divide the cerebellar hemisphere into two. इस फ्रंटल क्रेस्ट पे आके अटैच होंगे फॉक्स सेरिब्राई। और बेसिकली ये कनेक्शंस हैं ब्रेन के, जो स्कल के साथ यहाँ आके अटैच होते हैं। और ब्रेन आपको पता है दो पार्ट्स में होता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ये जो फॉक्स सेरिब्राई होते हैं, ये उसको डिवाइड करता है ब्रेन को टू पार्ट्स में, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप समझ आ रही? Yes. Now, as we run down, it starts as the crest, and then we run down. It divides into two lips. It is not prominent in the middle portion of the cranial wall. इस पोर्शन में, मिडल रीजन में, ये लिप्स इतने क्लियर नहीं होंगे। जैसे जैसे आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाओ, ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो दो इसके लिप्स फॉर्म होंगे, इनके दरमियान में एक सुपीरियर सेजिटल साइनस प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इस सुपीरियर सेजिटल साइनस में, या यहाँ पे ये सुपीरियर सेजिटल सल्कस है, ये क्यों वाइडन होता जाता है पोस्टीरियरली? क्योंकि जितनी भी हमारे पास लेटरल साइड से वेन्स आ रही हैं, इनिशियली वेन्स हैं और सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स हैं, वो सारी आके इसके साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ आके कनेक्ट होती हैं, ये पोर्शन जो है वो वाइडन हो जाता है, उन सबको ये एक्यूमुलेट करते हैं। मैम आपने सल्कस भी कहा और साइनस भी कहा जी। तो मैम तो ये सेम। हाँ, यहाँ पे ये सल्कस होगा। जैसे ये डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये सल्कस है। लेकिन ये सल्कस या ग्रूव जो है, जब ये पोस्टीरियर में हम जाएंगे, ये ज्यादा वाइडन होता जाता है और इसके अंदर साइनस भी फिर प्रेजेंट होगा जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम जाएंगे। मैम साइनस क्या होता है? साइनस क्या होता है? तो मैम आपने इधर अभी कुछ बोला, आवाज नहीं आई, समझ नहीं है। अच्छा,
पहले ये सजिटल सल्कस ये बना रहा है, जो आपके दो जो फ्रंटल क्रेस्ट, एक क्रेस्ट स्टार्ट हुई थी वो पीछे आके दो लिप्स बन रहे हैं, वहां पे एक सजिटल सल्कस है। ओके वो पीछे जब उसको पोस्टीरियर रिस्पेक्ट में आप आते जाओगे तो ये एरिया वाइडन होता जाता है। यहाँ पे आके जो साइड से वेन्स आ रही हैं, लेटरल दोनों लेटरल साइड से जो वेन्स आ रही हैं वो उसमें आके अटैच होते हैं, और यहाँ पे एक सुपीरियर सजिटल साइनस होता है। ओके अच्छा, अभी इसके पोस्टीरियर रीजन में अब दो, एक तो प्राइटल फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमने उस साइड से भी किए थे, जिससे मिश्री वेन्स पास कर रहे हैं। यहाँ से भी आपको नजर आ रहे हैं, ये प्राइटल फोरामेंस हैं, ये बिल्कुल लेमडा के पॉइंट के करीब होते हैं। उसके आगे अगली वाली साइड पे दोनों साइड्स पे हमें ये फोविया नजर आता है। डिफरेंस बिटवीन फोविया एंड द फोरामेन, फोविया ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो फोरामेंस हैं वो ब्लाइंड एंडेड नहीं है। इसमें से जो भी स्ट्रक्चर पास करता है वो मजीद आगे कहीं जाके कनेक्ट हो रहा होता है, लेकिन फोविया में जो कोई भी चीज प्रेजेंट होगी वो कहीं जाके कनेक्ट नहीं कर रही, ये ब्लाइंड एंडेड है। क्लियर हुई है ये इसका डिफरेंस बिटवीन फोविया एंड मैम फोरामेन? इसको रिपीट कर दें डिफरेंस को। अच्छा, फोविया जो है वो ब्लाइंड एंडेड है, मतलब उसका आगे कहीं वो कनेक्ट नहीं करेगा। फोविया में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सिर्फ इसी में रहेगा, जबकि फोरामेन में जो कोई भी स्ट्रक्चर पास कर रहा होता है वो मजीद उसकी आगे कनेक्शन होता है, वो कहीं जाके कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ओके मैम अब इस व्यू से हमारे पास ये जो फोवियाज प्रेजेंट हैं सुपीरियर सजिटल सल्कस के लेटरल साइड से, ये इनमें प्रेजेंट होगा हमारे पास अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन। अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस, और उसकी वजह से हम इसका नाम होगा ग्रैनुलर फोवियला। मैम इसमें क्या होगा? अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस, मैम स्पेलिंग। ARACHNOID, अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन। मैम क्या होता है? सॉरी मैम ये होता क्या है, मतलब इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, इस सरफेस पे अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो जो ब्रेन का फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसको हम कहते हैं, वो इसमें फिल्ड होता है। ठीक है, ये आप यूं कह लो जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। CSF जो फ्लूइड है ना, हम पूरे ब्रेन को जो जिसने सराउंड किया होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये मजीद आगे ड्यूरा मैटर के साथ कनेक्ट करता है और ड्रेनेज करता है हमारे जो भी इसके फ्लूइड आ रहा होता है फ्रॉम द ब्रेन उसकी सबरेक्नॉइड स्पेस इनटू वीनस सिस्टम। ये अभी आपको सही क्लियर नहीं होगा, जब आप न्यूरो एनाटॉमी करोगे तब आपको ये पहले टर्म्स पढ़ाई जाएंगी कि ये क्या है ये क्या है, उसके बाद समझ आएगी। अभी आप सिर्फ इतना कर लो कि ये यहाँ पे दो फोबियाज प्रेजेंट हैं विच आर ब्लाइंड एंडेंट, और इसमें अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस प्रेजेंट हैं, और जिसकी वजह से हम इसका नाम होगा ग्रेनुलर फोबिया। ठीक है, मैम बस यही स्ट्रक्चर्स है इसमें पॉइंट में। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है क्या? मैम
एक्चुअली बुक में ये वोल्ट का टॉपिक नहीं आना, तो बस यही structure है इसका। सर मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आई है, तो समझ नहीं आ रहा। इंटीरियर सरफेस सब क्लियर है सबको? यस मैम। रिपीट करना है कुछ तो मुझे बता देती। एक्सक्यूज मी मैम, ब्राइडल फॉर्मल से कौन सी वेन गुजरती है? इनिशरी वेन। ओके मैम। मैम इसकी सजिटल हाँ, साइकिल से ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जहाँ से बस ये क्रेस्ट डिवाइड होना स्टार्ट होती है, ये मिडल जो पोर्शन है ना, मिडल रीजन जो है इसका वॉल का, उसमें। ये नीचे भी तो है। ये आगे जाके फिर इसमें साइनस बना देता है, जहाँ पे वो सारी वेन्स इसमें आके करते हैं, जो मैम लैटरल साइड। ये ऊपर वाला साइनस क्या है? फ्रंटल साइनस। तो ये तो आपके फ्रंटल जो व्यू है ना, इंटीरियर व्यू है, वहां से नजर आता है। ये तो आपकी फ्रंटल बोन में अब आईब्रोज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, फ्रंटल साइनस। ओके। अच्छा, अभी आप इसके जो लेटरल सरफेस पे ना, ये आपको ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे। मेनिंजियल आर्टरीज की डिफरेंट ब्रांचेस के ये ग्रुप है, मिडल मेनिंजियल एंड द एंटीरियर मेनिंजियल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था टीरियन, जो इस रीजन में प्रेजेंट था। टीरियन के नीचे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्स में मेनिंजियल आर्टरी प्रेजेंट है, ये उस आर्टरीज के ये ग्रुप्स हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इसका कोई भी रप्चर होती है ये आर्टरी, तो हीमाटोमा बन जाता है, और उसको सर्जिकली रिमूव ना किया जाए तो इट इज वेरी लीथल। मैम इस हीमाटोमा को एक्स्ट्रा ड्यूरल कहेंगे ना?
अटेंडेंस आप अपनी मुझे दे दें। रोल नंबर 1 से आबिद अली, एब्सेंट है। आयजा, Present, Abid Ali. Here, ma'am. अलीना, आमना तारिक, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Present. जमीन, Present, ma'am. आन्या, अनीका, Present, ma'am. अनुषा, अरीज, Present, ma'am. अरसलान,